ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آج کی محفل سجانے پر ہمارے ایگزیکٹو ممبر ملک ظاہر یعقوب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ جو ان کی معاونت کے لیے جو میزبان ہیں، ملک افضل صاحب، ملک مسعود صاحب، ملک ظہیر صاحب، شیخ یونس صاحب اور یاسر مغل صاحب، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ان کے ساتھ معاونت کر کے ہماری میزبانی کی ہے۔ اور جو پنڈال میں دوست آئے ہوئے ہیں، میں سب کا باری باری نام لوں تو ساری رات گزر جائے گی، کھانا بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مجھے تقریر اس وقت ہی بلاتے ہیں جب کھانا لگا ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا۔ باتیں تو بہت کی ہیں، سب آپ نے سنی لی ہیں کہ یہ اب میرا دور ہے، وہ بھی سب کو پتہ ہے جو ہم لوگوں نے کام کیے ہیں۔ ہم نے اگر باؤنڈری بنائی ہے تو میں نے اپنے گھر کی نہیں بنائی، میں سب کے گھر کے لیے باؤنڈری بنائی ہے، سوسائٹی کی باؤنڈری بنائی ہے۔ اگر میں نے سیوریج بنایا ہے تو اپنے گھر کا سیوریج نہیں لگایا۔ یہ بے شک سوسائٹی کے ہی پیسے لگے ہیں، لیکن میری کافی ہے اس میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی تو میں نے وہ سیوریج ڈالا ہے جو کہ اسٹے پہ چل رہا تھا۔ میں نے اگر بیکن ہاؤس دیا تھا تو بچوں کی ایجوکیشن کے لیے دیا تھا کہ بچوں کی اس وقت بھی 186 بچے جو ہیں بیکن ہاؤس جاتے تھے باؤنڈری کے باہر ہمارے گھر ڈی سی کالونی سے باہر پڑھنے کے لیے۔ میں نے سوچا کہ یہ ہمارے گھر کے اندر ہی رہے، برانڈ آ جائے۔ ظاہر ہے اگر کوئی بندہ کوئی مارکیٹ بناتا ہے تو سب سے پہلے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس میں کوئی برانڈ آئے۔ ہم نے برانڈ لانے کی کوشش کی تو اس اسکول کو بیکن اسکول میں تقریباً 1 مہینہ چلا، 1.5 مہینہ، 97 بچے ہو گئے تھے اس میں داخلے میں۔ تو جس بندے نے اس کا سٹے لیا ہوا ہے میرے خیال میں وہ اسکول نہیں گیا ہوا، اور وہ بندہ اس 3 سال رجیم کے ساتھ زمینوں کا لین دین کرتا رہا ہے اور اکٹھے بل کے دیہڑیاں لگاتے رہے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑی، کسی کی سوچ نہیں گئی کہ اس سے ریکویسٹ کر کے اس کا سٹے ہی نکلوا لینا۔ اور آج وہ بھی سب سے بڑے کنگ میکر اور اپنے بھائی کو سیکٹری کے عہدے پر نامزد کیا ہوا ہے۔ یہ جو لوگ ان کے ساتھ اچھے بندے جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ایجوکیشن دیں گے جو بیکن ہاؤس اسکول پر سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے تو ان لوگوں پہ حیرانگی آتی ہے کہ کم از کم اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں۔ یہ ان لوگوں کو ووٹ دیں سوچ سمجھ کے جو سوسائٹی کے کام جنہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ جب سے ڈی سی کالونی بنی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی یہ ظرف بخشا ہے، ہمیں ہی یہ خدمت کا موقع دیا۔ اس سے پہلے تو کوئی الیکشن ہی نہیں ہوا، 21 سال سے ایک ہی بندہ براجمان تھا، اس کے سامنے کسی کی بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب ہم نے اس کو الیکشن میں لے کے آئے اور ہم نے ون کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی۔ ہم نے 3 سالوں میں بہت سارے کام کیے۔ فیس 2 کا معاملہ سب کے سامنے ہے، آج ہزاروں گھر ادھر بنے ہوئے ہیں۔ وہ جب ہم لوگ آئے تھے 8 سے 10% کام تھا، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی، ہم مکمل کر کے گئے، پوزیشنیں دینے شروع کر دیں۔ جب لوگوں کے آج ادھر جا کے دیکھیں ہزاروں گھر بنے ہوئے ہیں، ہزاروں ادھر رہائشیں آ گئی ہیں۔ یہ سیکورٹی کا سسٹم جو ہے ای ٹیگ لگا ہوا ہے، یہ بھی ہمارا ہی کام ہے۔ کیا کیا بتائیں، یہ LED لائٹس ہیں وہ بھی ہم نے لگوائی ہیں، سڑکوں کی مرمت۔ بہرحال گنائیں تو بہت سارے کام ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد سے، اللہ کی رحمت سے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو ہم بھرپور محنت سے پوری ٹیم میری نئے ولولے کے ساتھ، نئے جوش کے ساتھ انشاءاللہ کام کرے گی۔ سوسائٹی کے مسائل بہت زیادہ بھی ہیں اور بہت تھوڑے سے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے صفائی ستھرائی، اس کے بعد ہارٹیکلچر،
उसके बाद सिक्योरिटी, उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ। इंशाल्लाह ताला स्पोर्ट्स का जो मामला है, आने वाली जनरेशन, यंग जो लड़के हैं उनको लिए स्पोर्ट्स, हमने ये इब्तदाई मराहल में सब अप्रूव कराया हुआ है। एक स्टेडियम है लाहौर फोर्ट स्टेडियम की तर्ज पे, हमारे पास 14 एकड़ जगह है जिसको खड्डा लैंड कहते हैं। हमने बड़ी मुश्किल से, अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी और अल्लाह ताला ने ही मेहरबानी की कि ये रुका हुआ है। इन्होंने तो बेचने की कोशिश की थी, हम स्टे पे अभी उसको चला रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला सोसाइटी के एसेट को बढ़ाएंगे, जो सोसाइटी के कमर्शियल है उनको बिल्ड करेंगे और उनका जो किराया आएगा, उनसे जो आमदन आएगी, इंशाल्लाह ताला उनको उन्हीं से सोसाइटी को चलाएंगे और सोसाइटी को प्रॉफिट में लेके आएंगे। और जो बात इन्होंने की है यूटिलिटी बिल्स को ख़त्म करने की, कम से कम करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। साफ पानी मुहैया करेंगे, फिल्ट्रेशन प्लांट जो जिन इलाकों में नहीं है, हम लोग कैंपेन के लिए जाते हैं तो बहुत सारी लोग शिकायत करते हैं, कहीं मस्जिद नहीं है, कहीं पानी नहीं है। इंशाल्लाह ताला, और सबसे बड़ा जो हमारा प्लान है कि आइंदा ये नहीं है कि ये 15 बंदों ने ही जो करना है। इंशाल्लाह ताला हम हर ब्लॉक की काउंसिल बनाएंगे, कमेटियां बनाएंगे। जो रिटायर्ड लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी में ही रहना होता है, उनकी कमेटियां बना के, जो बड़े ब्लॉक हैं उनकी 2-2 कमेटियां बनाएंगे, ताकि हमारे साथ हमारे हाथ मजबूत करें। 150-200 बंदा हम रखेंगे जो रजिस्टर होगा हमारे पास, कि ये बंदा, इन बंदों ने जो 15 बंदे इलेक्ट होके आए हैं उनकी मुआवनत करनी है, उनको बताना है कि हमारे इलाके में ये मसाइल हैं, और जो भी काम होगा 150-200 बंदों के सामने होगा। हम इतवार को, हफ्ते की रात को कोई ऑर्डर नहीं लेके आएंगे, ना ही हम अदालतों के पीछे छुपेंगे, ना ही कोई ऐसा काम करेंगे जैसे इस दौर में हुआ है कि 8 बंदों की एक कमेटी बना दी है, उन्होंने ही फैसला करना है और कमेटी में आके उन्हीं 8 बंदों ने अक्सरियती राय से पास कराना है। ऐसा कतई नहीं होगा। मैं इंशाल्लाह, जैसे मेरे सब दोस्त जो स्टेज पे आए हैं सब ने हलफ दिया है, हम लोग आपके सामने खड़े हैं, हम हल्फन कहते हैं, इंशाल्लाह ताला कोई बंदा करप्शन के नज़दीक भी नहीं जाएगा, और जिन लोगों ने करप्शन की है इंशाल्लाह ताला उनका मुहासबा भी किया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि ये लोग जिन्होंने 2 नंबर फाइल ले या 3 नंबर या 15 किलोमीटर दूर जाके ली है, जगह लेके बेची है, ये सब की इंक्वायरी हो इंशाल्लाह ताला, हम वो भी करेंगे। और फेज 3 का मामला है, हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हम फेज 3 बनाने के मूड में नहीं है, उसके खिलाफ है। जो नक्शा इन्होंने पास करवाया है वो सारी अप्रूवल हमने कर ली हुई थी। आखिरी और GDA के चेयरमैन का वो मसला था, वो हमारे दौर में उन्होंने साइन नहीं किए, इन्होंने साइन करवाए उनसे, नक्शा पास हो गया, अच्छी बात है। DC कॉलोनी का फेस 1-2 का 14 करोड़ रुपया उसकी फीसें दी, फिर भी हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन उसको बनाए। कोई भी सोसाइटी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की हो, जब एक फेस बनता है उसको मुकम्मल करते हैं तो फिर आगे एक्सटेंशन करते हैं। इन्होंने अगर जो PP1 का नक्शा जो पास करवाया है कारपोरेशन से, GDA से, उसको पहले बनाए तो सही, उसके बाद एक्सटेंशन करें। ये 15 किलोमीटर दूर जाके तो कब्रिस्तान भी नहीं बनना, कौन मुर्दा इतनी दूर जाके दफन करेगा? ये पता नहीं क्या इनकी सोच है। ये आप देखें, ये सोसाइटी जो बनी है, खालिद साहब ने, कैप्टन साहब ने जो सोसाइटी बनाई है, पहले फेज 1 किया है, उसके बाद फेज 1 की एक्सटेंशन की है, उसके बाद फेज 2 की है। ये तरीका होता है कोई भी काम करने का, कि उसको बढ़ाना है, उसको वसी करना है तो पहले तो बिल्ड कर ले। अभी तक उधर ना उसके खड्डे भरे हैं, ना उनका कोई प्लान बना है। पहले आप उसको कुछ 70-60% कंप्लीट करें तो उसके बाद इसकी एक्सटेंशन करें। अभी तो जहाँ ये नक्शा पास हो उसके अंदर तो मेरे ख्याल में 600 एकड़ जगह है, लेकिन वो जगह जो 2 करोड़ का एकड़ है, तो इन्होंने 20-20 करोड़ के जाके 15 किलोमीटर दूर जाके गकड़ के पता नहीं कौन सा गांव बताते हैं वहाँ से ली है। मैं तनकीद नहीं करता, ये बातें मेरे ख्याल में सब रेशियो को पता है उन्होंने क्या किया है, हमने 3 सालों में क्या किया था, और आने वाला दौर है इंशाल्लाह ताला। फोटो स्टेडियम की तर्ज का, बहुत सारे लोगों ने लाहौर का फोटो स्टेडियम देखा होगा, हम उस तर्ज का स्टेडियम बनाएंगे। कुदरती तौर पे आप लोगों की किस्मत से, रैशियों की किस्मत से, मेम्बरान की किस्मत से वो 14 एकड़ जगह बच गई हुई है, वो खड्डा है,
हम उस पे सारा इब्तदाई मराहल सारे मुकम्मल किए हुए थे मैंने, इन्होंने परसों ही नहीं किया। इंशाल्लाह ताला कानवे रोड से फेज 3 को रास्ता भी लेके देंगे। हमने जो सीवरेज डाला है वो उधर 3-4 सोसाइटियों के लिए काफ़ी होगा। ये कश्मीर कॉलोनी इसके साथ ढींगरा वाली है, DC कॉलोनी का जो सीवरेज है, उसके बाद एक्सटेंशन 3 का, प्रोफेसर टाउन का, स्टेट लाइफ का, और एक और सोसाइटी है उधर सोशल सिक्योरिटी वालों की, ये सब मर्ज होनी है उधर, तब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होना है। हमें तो इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तकरीबन 1800 एकड़ जगह है, ये जो इसके करीब करीब है। हमने इन छोटी छोटी सोसाइटियों को मर्ज करके जो सीवरेज डाला है वो सबके लिए काफ़ी होगा। हमने पूरा प्लान 1 साल के लिए या 1 साल या 5 साल के लिए हमने प्लान नहीं किया कि हमने 3 साल बाद चले जाना है और इसको जो होगा बाद में देखा है। हमने पूरी प्लानिंग की हुई है, आने वाले 10-20 साल भी जो सोसाइटी जैसी जैसे आबाद होगी फेज 3 तो इंशाल्लाह ताला उनके लिए जो हमने प्लान किए हुए हैं, जो हमने शुरू किए हैं, उनको मुकम्मल करेंगे, सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगे। बीकन हाउस को भी बहाल कराएंगे, और भी जो अच्छे रेस्टोरेंट और जो दोस्तों के बच्चे, जो मेम्बरान के बच्चे बाहर सिनेमा देखने जाते हैं, हम वो भी इधर बिल्डिंग बनाएंगे। जो हमारे ये इंडस ब्लॉक और जेलम ब्लॉक वाला जो प्लाजे हैं उसमें ऑलरेडी सिनेमा और सब कुछ सहूलत वो नक्शा कंट्रोलर बोर्ड से पास हुआ है। इंशाल्लाह हम उनको बिल्ड करेंगे, चाहे हमें बैंक से लोन लेना पड़े। हमारे इधर बैंकर बहुत है, हमारे पास आर्किटेक्टर बहुत हैं, हमारे पास प्रोफेसर बहुत हैं, डॉक्टर्स बहुत हैं। हम सब की एक टीम बनाएंगे, जो अच्छे काबिल बंदे हैं उनसे मशवरत लेके इन कामों को मुकम्मल करेंगे। बहुत लंबी मेरी तकरीर होगी, माजरत करता हूँ। मैं फिर दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेम्बरान से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना वोट भी डालें। 12 मार्च इतवार वाला दिन है, और दोस्तों को भी ला के, जो हमारा इलेक्शन जो है ना, कहते हैं कि इलेक्शन डे जो 50% होता है, लेकिन हमारा इलेक्शन 75% है इलेक्शन डे। आप उस दिन पर भी ध्यान रखें और फाउंडर ग्रुप का साथ दें, हाथों में हाथ दें, फाउंडर ग्रुप का साथ दें। इंशाल्लाह ताला आप कभी पशेमान नहीं होंगे, कभी ये नहीं सोचेंगे कि हमने गलती की है। ये 3 साल आने वाला दौर इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह मिसाली होगा। मैं सब दोस्तों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ताला बाकी की बातें फिर अगले कहीं फंक्शन में होगी। मैं दोबारा जो मुंतज़मीन है, जो हमारे मेज़बान हैं, उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ, और पंडाल में बैठे हुए सब दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।